Hello everyone, welcome back to the Fun Academy YouTube channel. So we are going to start the class 11th Status for Economy, class 11th chapter 4. Okay, so the chapter 4 is regarding the presentation of data. Before starting the chapter, I request you to please do like, share and subscribe the channel. Presentation of data means how to represent the data. So there are total 3 method of data presentation. So what is the data? Simple information we have in a systematic manner. तो अगर हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन सिस्टमैटिक मैनर में है, फॉर एग्जांपल एज ऑफ द स्टूडेंट्स, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वाइज, तो हमको वो प्रेजेंट करना पड़ेगा इन अ सिंपल वे टू कन्वे द मैसेज, टू कन्वे द इंफॉर्मेशन इन अ सिंपलेस्ट मैनर. दैट इज़ द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो हम डाटा किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? देर आर 3 मेथड्स. ओके, द फर्स्ट वन इज textual method. Now what is the textual method? Textual method is written form. Data in a written form, descriptive form, is nothing but your textual presentation of data. Okay, so we are going to study in detail textual description. The second one is tabular presentation. Tabular means in the form of table. Third one, diagrammatic presentation. Diagrammatic presentation means presentation of data by the using of diagram. So diagram may be some shape, geometrical shape, mathematical shape, or some random shape, for example line, graph, etc. So there are 3 methods to represent data: textual, tabular and diagram. First one is tabular presentation. Now the tabular presentation means data in the form of text or written format. For example, there is in a Bandh call given of 8th September 2005, protesting the hike in the price of petrol and diesel, 5 petrol pumps were found open, 17 were closed, whereas 2 schools were closed, remaining 7 schools were found open in the town Bihar. So that is the information regarding the Bandh. मीन्स हड़ताल बुलाई जाती है, उसे बंद बोलते हैं. 8 सितंबर 2005 में पेट्रोल और डीजल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना था, ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें पता चलता है. डेट इज़ अ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन, यू नो, टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन. दैट्स इट, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. द नेक्स्ट वन इज योर tabular presentation of data. Now what is a tabular presentation of data? Simple, data in the format of table. Data in the format of table. Simply, for example, this is the table. Okay, so this is the data, not the table, sorry. It is incomplete table of the data. For example, there is a literacy rate in India by the section location, means male literacy rate in the rural areas and urban areas, then female literacy rate in the rural areas in the urban areas. So this is the table which tells us about the data regarding the literacy rate in India respective to the gender basis as well as the location basis, geographical region basis. Okay, so this is the table or tabular presentation of data. Now the classification of data within the tabular presentation can be on the basis of 4 heading. First is qualitative, second is quantitative, third one is temporal and fourth one is spatial. और सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो क्वालिटेटिव मीन्स ऐसा डाटा जिसको हम क्वालिटी के बेसिस पर डिस्टिंग्यूज कर पाएँ, डिफरेंट कर पाएँ, सेपरेट कर पाएँ. सेकंड वन क्वांटिटेटिव. क्वांटिटेटिव मीन्स ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास में है डाटा के फॉर्मेट में जिसको हम क्वांटिफाई कर पाएँ, मीन्स न्यूमेरिकल नंबर से हम उसको रिप्रेजेंट कर पाएँ. फॉर एग्जांपल आपका एज है, हाइट है, प्रोडक्शन है, इनकम है, एक्सेट्रा. सो ऑल दीज इंफॉर्मेशन वी कैन रिप्रेजेंट बाय द न्यूमेरिकल डाटा, न्यूमेरिकल नंबर्स. ओके, सो दिस इज द टेबल. एज ग्रुप, वी क्वांटिफाई द एज ग्रुप, 20 है, 30 है, 40 है. Number of respondent and the percentage. So that is the table based on the quantitative data. Next one is your temporal. Temporal means on the basis of time. टाइम के बेस पर अगर हम डाटा को टेबल में अरेंज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हेयर इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ईयर, किस ईयर में कितना सेल हुआ है, दिस इज द डाटा सोर्स बाय दिस टेबल.
4.3. So this table is the type of temporal tabular presentation of data. क्लियर है. लास्ट वन इज स्पेशियल क्लासिफिकेशन. स्पेशियल क्लासिफिकेशन मीन्स जोग्राफिकल लोकेशन के बेस पर हमें डाटा को डिस्टिंग्यूज किया है, डाटा को हमने सिस्टमेटिक मैनर में प्रेजेंट किया है. दैट इज अ स्पेशियल क्लासिफिकेशन. सो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेसेस, ऑन द बेसिस ऑफ जोग्राफिकल लोकेशन, इट मे बी विलेज, टाउन, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, even country, even Asia or the continent. Okay, स्पेशल क्लासिफिकेशन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, इंडिया का एक्सपोर्ट अगर डाटा रिप्रेजेंटेशन करना है कंट्री वाइज, सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्पेशल टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. क्लियर हो गया. वी हैव स्टडीड द टेबुलर प्रेजेंटेशन एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन. क्वालिटी के बेसिस पर कुछ क्वालिटी ऐसी होंगी जिसको हम क्वांटिटी के फॉर्म में भी बता सकते हैं, दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव डाटा. देन कम्स द टेम्पोरल प्रेजेंटेशन. टेम्पोरल प्रेजेंटेशन मीन्स टाइम के बेसिस पर. नेक्स्ट इज स्पेशियल. सो हमने इतना पढ़ लिया है. नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन, दैट इज tabulation of data. Tabulation of data means how to make a perfect systematic table for the presentation of data, and what the headings and subheadings and the content of the tabular presentation must contain. किस किस चीज़ों को हमें याद रखना है टेबल बनाते हुए. सो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, और वो कौन से हेडिंग सब हेडिंग है, कौन से कंपोनेंट हैं टेबुलर प्रेजेंटेशन के, वो हमें याद रखना पड़ेगा. द फर्स्ट वन इज टाइटल. सिंपल. द फर्स्ट वन इज टेबल नंबर. सबसे पहले हम टेबल नंबर असाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ पर टेबल बना है, टेबल नंबर है 4.4. तो टेबल नंबर हमें क्या बताएगा? द आइडेंटिफिकेशन पर्पस. सिंपल हो गया. आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किस टेबल पर जाकर कौन सा डाटा मिलेगा. सो टू आइडेंटिफाई द टेबल एंड द टेबल कंटेंट on which page number or which table is related to which type of data. So that is the table number. Next come the title of the table. Title of the table tells us about the content of the table. For example, literacy rate in India, or the number population based on religion basis. तो religious basis पर हमारा population कितना है, that is the title that shows the population composition of India on the basis of religion. So that is the title, source, content of the table. Next come caption or the column heading. So what are the column and what are the rows? तो जो horizontal हमारे box बनेंगे, block बनेंगे, these are the row. Horizontal row होता है and vertical आपका column होता है. So column headings means हम सब डिवीज़न करेंगे अपना जो भी हमारा क्लासिफिकेशन होगा डाटा का, कॉलम और हेडिंग के फॉर्म में. नेक्स्ट कम योर बॉडी ऑफ द टेबल, मीन्स मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड यूनिट ऑफ द मेजरमेंट. तो जो भी हमारा डाटा है वो किस यूनिट में है. फॉर एग्जांपल अगर हम किसी का पैसा, मनी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें रुपी लिखना पड़ेगा या डॉलर लिखना पड़ेगा, है ना. जो भी हमारा करेंसी हम यूनिट यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे. अगर हमने किसी का पॉपुलेशन लिखा है तो पॉपुलेशन का नंबर क्या है, लैक्स में है, करोड़ में है, 1000 में है, क्या है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट. नाउ अब इस एग्जाम्पल से बहुत आसानी से आपको क्लियर हो जाएंगी एक एक चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है. दिस इज़ द टेबुलेशन ऑफ डाटा. फर्स्ट कम योर टेबल नंबर. नेक्स्ट कम टेबल नंबर हो गया हमारा 4.5. देन कम द टाइटल. तो टाइटल इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू वर्कर्स नॉन वर्कर बाय द जेंडर लोकेशन 2001. सेकेंड वन इज योर टाइटल. थर्ड वन इज कॉलम हेडिंग. Column heading, these are the column. So location, these are the column. Gender, main gender, marginal, total worker, non-worker, total. These are the column heading. Then fourth heading is row heading. Fourth component is row, means row. These are the rows. It all about overall data, male, female, total. It is all about the urban data. It is all about the rural data. These are the heading or the stubs, row data. Clear है. Next point is body of the content. What is the body of the content? This is the total data representing the population of India. It is the total population of India, rural, urban, and all. So this is the body of the table.
द नेक्स्ट पॉइंट इज हेयर द यूनिट, तो मीन्स यूनिट हमारा जो पॉपुलेशन है वो किस यूनिट में है, एज पर दी करोड़, सो यूनिट इन दी करोड़. नेक्स्ट इज सोर्स. सोर्स मीन्स द डाटा इज टेकन फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया. द सोर्स ऑफ द डाटा इज census of India. The next point is note. Note, special character of the table, means some caution or precautions have to be maintained. So for example, here it is, figures are rounded to nearest crore. So there is approximation of these data. Simple है. So this is the tabulation presentation of data, and these are the different components of tabulation. Now next topic is diagrammatic presentations. So we have seen the textual presentation, means in the written format. Then comes tabular presentation, the second method. Last one is diagrammatic presentation of data. So we have data and we have to present in the format of diagram. Why? So to represent data in more simplistic visual format, है ना, आसानी से आप देखकर किसी को भी डाटा, कोई भी डाटा हमारा है उसको देखकर आप इंटरप्रेट कर पाएँ कि देयर इज़ अ डिक्रीज इन द डाटा और डिक्रीज इन द डाटा और इंक्रीज इन द डाटा, जो भी है तो हम पिक्चर को देख के आसानी से बता सकते हैं. नाउ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशंस अदर हैव फर्दर डिवीज़न. अब डायग्राम भी अलग अलग हम यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ ज्योमेट्रिकल डायग्राम. ज्योमेट्रिकल मीन्स मैथमेटिकल शेप का यूज़ करना. नेक्स्ट वन इज़ फ्रिक्वेंसी डायग्राम. फ्रिक्वेंसी डायग्राम मीन्स जो भी हमारा फ्रिक्वेंसी है उसको हम कर्व के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स रैंडम शेप रहेगा वहाँ पर. थर्ड वन इज़ एरिथमेटिक लाइन. एरिथमेटिक लाइन मीन्स जहाँ पर हम लाइन का यूज़ तो करेंगे, साथ ही साथ में टाइम सीरीज जहाँ पर गिवन होगा, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा डाटा का. अभी हम आगे देखेंगे आसानी से एग्जाम्पल के साथ में. फिर फर्स्ट हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल डाटा. ज्योमेट्रिकल डायग्राम मीन्स मैथमेटिकल शेप का यूज़ करना. सो इट इज़ ऑफ टू टाइप, बार डायग्राम एंड योर पाई डायग्राम. बार डायग्राम में क्या होता है, बार डायग्राम में हम इक्यू स्पेस्ड एंड इक्यू विथ रेक्टेंगुलर बार्स का यूज़ करेंगे. ओके, सो हेयर द हाइट एंड लेंथ डिपिक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ डाटा. हाइट एंड लेंथ हमें बताएगा कि डाटा वो कितना है, परसेंटेज में गिवन है या न्यूमेरिकल डाटा गिवन है, उसका हाइट एंड विथ इंपॉर्टेंट है, जो भी हमारा बार रहेगा. सो व्हाट इज़ बार? बार मीन्स हो गया रेक्टेंगुलर शेप. रेक्टेंगुलर एक रेक्टेंगल है, उसको हम बार इस तरीके से बोलेंगे, दीज आर दी बार. सिंपल हो गया. सो बार डायग्राम. अब बार डायग्राम भी फर्दर डिवाइड होते हैं. सिंपल बार डायग्राम भी हो सकता है और मल्टीपल बार डायग्राम भी हो सकता है और कंपोनेंट डायग्राम भी होता है. सो फर्स्ट कम सिंपल बार डायग्राम. अगर हमारे पास इफ़ वी हैव ऑल दीज डाटा, सो वी हैव टू प्रेजेंट ऑल दीज डाटा इन डायग्रामेटिक फॉर्म एंड द बार डायग्राम. ओके, तो बार डायग्राम अगर हम बनाएंगे किस तरीके से बनाएंगे, सो वी हैव मेल फीमेल एंड 2000, 2001 एंड 2001. सो दिस इज़ द मल्टीपल डाटा. ये एग्जाम्पल आगे देखेंगे. पहले हम देखें सिंपल बार डायग्राम. सिंपल बार डायग्राम का मतलब है जहाँ पर हमें सिंगल क्वालिटी के बारे में कंपैरिजन डाटा गिवन है. सॉरी, बार डायग्राम जो सिंपल है मतलब सिंगल कंपोनेंट हमें उसका डाटा का गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है. फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेजर स्टेट गिवन है इंडिया के, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, महाराष्ट्र, यूपी, ऑल दीज. नेक्स्ट कम द लिटरेसी रेट. तो यहाँ पर सिंगल कंपोजिशन गिवन है हमारे स्टेट का, दैट इज़ लिटरेसी, और हमें कुछ भी नहीं बताया गया. अगर यहाँ पर हम एक से ज़्यादा क्वालिटी को कंपेयर करेंगे, सो वी हैव मल्टीपल बार डायग्राम. फॉर एग्जांपल सेम फीमेल लिटरेसी रेट गिवन है, स्टेट गिवन है, फीमेल लिटरेसी गिवन स्टेट्स का और परसेंटेज गिवन है. बट ट्विस्ट क्या है, यहाँ पर 2011 का डाटा भी है और 2001 का डाटा भी है. सो 2001 का बार ग्राफ हमारा अलग बनेगा और 2011 का अलग बनेगा. तो ये 2001 का है, ये 2001 का है और ये 2011 का है, बिकॉज लिटरेसी रेट इंक्रीज़ हुआ है इंडिया में, हम इस तरीके से देखकर बता सकते हैं. सो दिस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल बार डायग्राम. सिंपल हो गया. लास्ट वन इज़ कंपोनेंट बार डायग्राम. कंपोनेंट बार डायग्राम में होता क्या है,
इसको हम सब डायग्राम भी बोलेंगे, जहाँ पर हमें कंपेयर करना है डिफरेंट कंपोनेंट्स का कंपैरिजन करने के लिए हम कंपोनेंट बार डायग्राम का यूज़ करेंगे। दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कंपोनेंट बार डायग्राम। सिंपल एग्जाम्पल में आप समझने पे फोकस करिए। थ्योरी जो है PDF आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए स्कैन करके QR। सो हियर इट इज़ द डाटा सोर्स। फर्स्ट क्वालिटी बॉय गर्ल्स ओवरऑल एंड आउट ऑफ द स्कूल एंड एनरोल, मीन्स स्कूल में कितने लोगों ने एडमिशन लिया है और कितने लोगों ने एडमिशन नहीं लिया है। समझ में आ रहा है? कितने लोगों ने एडमिशन लिया, कितने लोगों ने एडमिशन नहीं लिया, डेट इज़ योर डाटा। सो दिट इज़ द कंपोनेंट बार डायग्राम है। यहाँ पर देखिए 91% ऑफ द बॉयज़ एनरोल्ड इन द स्कूल एंड 8.5% ऑफ द बॉयज़ रिमेन आउट ऑफ द स्कूल। सो एक सिंगल बार हमें बता रहा है बॉयज़ के 2 डिफरेंट डाटा। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, कंप्लीट हमें 100% बनाना पड़ेगा पहले। ओवरऑल जितना भी पॉपुलेशन गिवन है, जितने भी नंबर गिवन है ना, स्टूडेंट्स का, बॉयज़ का, गर्ल्स का, हम सबको पहले 100% मानेंगे। ये हो गया 100% बॉयज़ है, 100% गर्ल्स हैं। अब बॉयज़ में से 50% बॉयज़ क्रिकेट खेलते हैं, तो 50% पे हम क्या कर देंगे, बॉयज़ को क्रिकेट, यहाँ तक हो गया। और इससे रिलेटेड आगे जितना भी 40% बॉयज़ हैं, 50% बॉयज़ हॉकी खेलते हैं। सो दिस इज़ दी हॉकी। सो हम इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट करेंगे अपने। अगर हम क्रिकेट को देखें तो क्रिकेट का बॉक्स हम इस तरीके से बना सकते हैं और हॉकी में सर्किल करेंगे। सिंपल हो गया। गर्ल्स में आप लेट कर लीजिए, ये गर्ल्स का मेजॉरिटी है क्रिकेट में है और 20% हमारा सिर्फ और सिर्फ हॉकी में है। इस तरीके से हम सिंगल बार में डिफरेंट डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट इज़ अ कंपोनेंट बार डायग्राम। समझने पे फोकस करिए। थ्योरेटिकल पार्ट जो भी है आप देख लोगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है बनाने, जब आप बार डायग्राम बनाओगे कंपोनेंट वाला, तो 100% पर हमें बनाना है, उसके बाद में हम उसको डिवीज़न करेंगे। क्योंकि बार डायग्राम में देखिए यहाँ पर क्या होगा, ऊपर नीचे करते हुए नज़र आएंगी चीज़ें। दैट इज़ अ मल्टीपल बार डायग्राम हो या फिर सिंपल बार डायग्राम हो, तब भी यहाँ पर ऊपर नीचे हमें ग्राफ देखने को मिलेगा, कर्व देखने को मिलेगा बार डायग्राम का। बट जो हमारा कंपोनेंट बार डायग्राम है वो सिंगल स्लोप में है, एक लेवल पर है। ऐसा क्यों है वो समझ में आ गया। अगर ये PDF चाहिए, नोट्स चाहिए आपको, या फिर कनेक्ट होना है, तो टेलीग्राम चैनल को आप स्कैन कर लीजिए और डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, और यहाँ पे PDF वगैरह, नोटिफिकेशंस वगैरह सबको आपको मिलेगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ डायग्राम रिप्रेजेंटेशन इज़ पाई डायग्राम। पाई डायग्राम क्या होता है, सिंपल, हमें एक सर्किल बनाना है और सर्किल पे अपने डाटा को प्रोपोर्शनेटली का मीनिंग क्या होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। फॉर एग्जांपल उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पाई डायग्राम का एग्जांपल समझाता हूँ। जो भी हमारा डाटा गिवन है यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन से रिलेटेड, हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के बाद में जो सर्किल का एंगल होता है, सर्कुलर एंगल, कंप्लीट एंगल कितने का होता है सर्किल का, 360 डिग्री। कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है। नाउ इफ़ वी हैव डिफरेंट डाटा, फॉर एग्जांपल मार्जिनल वर्कर कितना है पॉपुलेशन का, 36%। इसको कन्वर्ट कैसे करना है, यहाँ पर देखिए सिंपल फॉर्मूला याद रखिए। एंगल इज इक्वल टू, जो भी डाटा गिवन है, एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज नंबर। तो यहाँ पर परसेंटेज है, वर्कर का परसेंटेज है पॉपुलेशन में अप्रॉक्स 9.9%। तो एंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस परसेंटेज डाटा को मल्टीप्लाई करेंगे ऑलवेज बाय 3.6 डिग्री। सिंपल है, इसको नहीं भूलना है। दिस इज़ द फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर while converting the angle of that particular data. So अब हमें 36% अगर मिल गया है वर्कर्स का, तो हम क्या करेंगे, 36 डिग्री इस टोटल सर्किल का 36 एंगल किसको जाएगा, वर्कर्स के लिए जाएगा, मार्जिनल वर्कर्स के लिए जाएगा। इस तरीके से ही हम क्या करेंगे, मेन वर्कर निकालेंगे, नॉन वर्कर का निकालेंगे और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। समझ में आ गया, दोनों साथ में चल सकते हैं। आपका जो भी, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आपका टोटल सर्किल का
एंगल होता है 360 डिग्री, और जो हमारा डाटा है वो इस 360 डिग्री को, वही सर्किल क्या है हमारा 100% है, मीन्स 100% ऑफ डाटा इज़ रिप्रेजेंट बाय द सर्किल मीन्स 360 डिग्री। और 360 डिग्री को हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करेंगे उसके प्रोपोर्शनल के बेसिस पर, प्रोपोर्शनेटली मीन्स रेशियो के बेसिस पर। सो दिस इज कंप्लीट बाय डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट कम योर फ्रिक्वेंसी डायग्राम। सेकेंड हेडिंग हमने देखा था फ्रिक्वेंसी डायग्राम। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में पहला था हेडिंग हमारा ज्योमेट्री बेसिस। ज्योमेट्री में हमने पढ़ लिया बार ग्राफ एंड योर पाई डायग्राम और पाई चार्ट। नेक्स्ट कम योर फ्रिक्वेंसी डायग्राम। फ्रिक्वेंसी डायग्राम का मतलब है जब हमें ग्रुप फ्रिक्वेंसी गिवन होगा तब हम किस डायग्राम को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर एग्जांपल आता है हिस्टोग्राम का, फ्रिक्वेंसी कर्व का, पॉलीगॉन फ्रिक्वेंसी एंड ओगिव का। इनके बारे में डिटेल में अगर पढ़ें, हिस्टोग्राम क्या है, सिंपल कुछ भी नहीं है हिस्टोग्राम में। मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊं, जो भी डाटा गिवन है उसको हमें सबसे पहले इंक्लूसिव टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट पड़ेगा। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने के बाद में फिर जो हम बार ग्राफ बनाएंगे उसको विदाउट एनी गैप, कोई भी बीच में गैप नहीं आएगा। यहाँ पर कोई गैप है नहीं है। बार ग्राफ देखो जल्दी से, बार ग्राफ में हमने एक गैप को मेंटेन करके रखा है। यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है, यहाँ पर गैप है। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होगा, हिस्टोग्राम में जो भी हमारा डाटा है हम उसको कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। कंटिन्यूअस की होने की वजह से यहाँ पर कोई भी गैप मेंटेन नहीं होगा। तो एक्स एक्सिस पे हमने लिया न्यूमेरिकल डाटा, वाई एक्सिस पे भी हमने लिया न्यूमेरिकल डाटा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी नंबर है और यहाँ पर भी नंबर है। बार ग्राफ में ऐसा नहीं था। बार ग्राफ में क्या था, बार ग्राफ में एक्स एक्सिस पर न्यूमेरिकल डाटा है, ऑन वाई एक्सिस देयर इज क्वालिटी ऑफ दैट डाटा मीन्स फीमेल लिटरेसी और द हेडिंग ऑफ दैट डाटा। सिंपल है, ये बेसिक डिफरेंस याद रखना है। हिस्टोग्राम में कोई भी गैप नहीं होता है, दैट इज़ द हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राफ हो गया। हिस्टोग्राम के बाद में हमें क्या पढ़ना है, हिस्टोग्राम के बाद में पढ़ना है फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन क्या है सर, तो अगर आपको हिस्टोग्राम समझ में आ गया तो फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन कुछ भी नहीं है, एक प्लेन है जहाँ पर स्ट्रेट लाइन के थ्रू हिस्टोग्राम का ही कर्व बताया जाता है। तो सिंपल भाषा में समझाएं, हिस्टोग्राम हमने बना लिया। हिस्टोग्राम बनाने के बाद में क्या करो, सिंपल इसके मिड वैल्यू को कनेक्ट कर दो। सारे के सारे बार जो हैं हमारे हिस्टोग्राम के, सो वी हैव टू कनेक्ट all the mid value of the histogram in this manner, and the resultant curve is known as frequency polygon। ये आपका frequency polygon कहलाएगा। याद रखना है, मिड वैल्यू को ही कनेक्ट करना है, मिड वैल्यू वाले पॉइंट को ही कनेक्ट करना है। दिस इज़ दी फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। कंटिन्यूस क्लास यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे आपकी न्यूमेरिकल डाटा रहेगा। तो हमने हिस्टोग्राम समझ लिया, उसके जब हम लाइन मिड वैल्यू को कनेक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन। देन कम्स फ्रिक्वेंसी कर्व। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी कर्व? अब फ्रिक्वेंसी कर्व क्या है? फ्रिक्वेंसी कर्व फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन का ही एक सिंपलेस्ट तरीका है। फ्री हैंडेड आप जब अभी हमने मिड वैल्यू को ध्यान में रखकर इसको कनेक्ट किया था, ठीक है, कोई भी हमें लेफ्ट बिहाइंड नहीं होना चाहिए, पॉइंट छोड़ना नहीं है, तो इसको फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन बोला गया था। बट अब हम एक रफ आइडिया के बेसिस पर एक फ्री हैंड कर्व बना दें, ठीक है, कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, हमने मिड वैल्यू को ध्यान नहीं रखा, दैट इज़ योर फ्रिक्वेंसी कर्व, जहाँ पर मिड वैल्यू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सारे पॉइंट कनेक्ट होंगे नहीं होंगे, लेकिन हमने रफ फ्री हैंड तरीके से एक कर्व डिज़ाइन किया है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी पॉलीगॉन, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोग्राम। उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज़ नोन एज योर फ्रिक्वेंसी कर्व। सिंपल, हिस्टोग्राम समझ में आया, हिस्टोग्राम समझ में आया बार ग्राफ से हमने हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम से पॉलीगॉन फ्रिक्वेंसी, पॉलीगॉन फ्रिक्वेंसी के बेसिस पे हमने पॉलीगॉन कर्व समझ लिया है। नेक्स्ट वन कर्व कम्स योर ओगिव। ओगिव क्या है? ओगिव, सो ओगिव इज़ टू टाइप।
लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप। सिंपल होता क्या है, सिंपल कुछ भी नहीं है। ओ गिव आर द लाइन ग्राफ, लाइन ग्राफ है बट फॉर द कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी। कंडीशन क्या है, कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी होना चाहिए। कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी होती क्या है, अभी देखिए सिंपल, इस तरीके से डाटा आपको गिवन होगा और आपको क्लास इंटरवल गिवन है, हर जगह गिवन होता है, फ्रिक्वेंसी टेबल में, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर गिवन है, कोई बड़ी बात नहीं है सर क्या करें। इसको हम कन्वर्ट करेंगे कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। सर कम्यूलेटिव क्या होता है, कम्यूलेटिव को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रीड करो, यहाँ पर क्या लिखा है, क्लास इंटरवल मार्क्स बिटवीन 0 to 20। तो 20 क्या क्लास हो गया यहाँ पे, 0 से 20 के बीच में, 0 से 20 के बीच में जिसके मार्क्स हैं उस स्टूडेंट्स के नंबर कितना है, डैट इज़। अब कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है इसका एक लेस देन के फॉर्म में लिखना और एक मोर देन के फॉर्म में लिखना। कैसे लिखेंगे, बहुत आसान है, सिंपल। 0 से 20 को हम एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 20 से कम है, लेस देन 20, एक ही बात है। जिन बच्चों के मार्क्स 20 से 40 हैं, दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं इसको कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाने के लिए, जिन बच्चों के मार्क्स 40 से कम है। सेम 40 से 60 को क्या बोल सकते हैं, ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 60 से कम हैं। मतलब वो सारे के सारे बच्चे कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी में ऐड ऑन होते जाएंगे। इस वाले बच्चे यहाँ तक जिनके 20 से कम है, 20 से कम है, वो बच्चे 40 में भी तो आएंगे, 40 से कम है वो बच्चे 60 में भी आएंगे, 60 से कम है, 80 से कम है, 100 से कम है। तो ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको लास्ट में इक्वल नज़र आएंगे। जो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं 64, वैसे ही सेम लास्ट में 100 से कम कितने हैं, 64। तो लेस देन में आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट लास्ट में बढ़ते बढ़ते टोटल पे पहुँचे हुए। और सेम हम मोर देन लिख सकते हैं। मोर देन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज स्कोर इज़ मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60, मोर देन 80। लेकिन सर ये पता कैसे चलेगा, ये हमें पॉइंट कौन सा लेना है, मार्क्स किस पॉइंट पे लेना है, 20 लेना, 40 लेना। सर यहाँ पर देखो सिंपल, जब हम लेस देन की बात करेंगे तो इसकी अपर लिमिट से लेस देन कर दो, 40 से नीचे वाले 60 से, नीचे वाले 80 से, नीचे वाले 100 से नीचे। जब मोर देन की बात करेंगे तो इसी से आगे चले जाओ, लोअर लिमिट से पहला क्या आ जाएगा, मोर देन 20, मोर देन 20, मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 40, मोर देन 60, मोर देन 80। मतलब जब लेस देन की बात करेंगे तो अपर लिमिट से ऊपर चले, लेस देन में आ जाओ, और मोर देन की बात करेंगे तो लोअर लिमिट से मोर देन चले जाओ। सिंपल हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते चले जाएंगे और यहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं। अब कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाने के बाद में करना क्या है सर, दो अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। लेस देन का ग्राफ अलग बनेगा ऐसे, मोर देन का ग्राफ अलग बनेगा। कंबाइन ग्राफ क्या करेंगे, दोनों को जब हम साथ में बनाएंगे, दैट इज़ दी लेस देन ग्राफ, दैट इज़ मोर देन ग्राफ। कैसे पता चल रहा सर, लेस देन ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा, इंक्रीजिंग होगा। डिक्रीजिंग ग्राफ कौन सा होगा, मोर देन वाला ग्राफ। और जिस पॉइंट पर ये दोनों मीट करेंगे उस पॉइंट पे हमें अपने डाटा का मीडियन मिल जाएगा। सिंपल हो गया। तो ये पॉइंट रखना है याद, और ये हमारा था ओगे। सो ओगे बार नथिंग बट कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व, कम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी कर्व को ही हम ओगे बोलते हैं। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ एरिथमेटिक लाइन ग्राफ। एरिथमेटिक लाइन ग्राफ क्या होता है सर, लाइन ग्राफ है बट इट इज़ एरिथमेटिक। सो न्यूमेरिकल डाटा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सीरीज़ और टाइम के बेसिस पर जो भी लाइन ग्राफ हमारे पास में होगा, है ना, कंटिन्यूस टाइम सीरीज़ को कंपेयर करना टाइम ग्राफ का काम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए, हमें डाटा गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मीन्स किस ईयर में इंडिया का एक्सपोर्ट कितना रहा और इम्पोर्ट कितना रहा। एक्सपोर्ट गिवन है, इम्पोर्ट गिवन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ईयर के बेसिस पर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल, यहाँ पर हमने अपना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वैल्यूएशन ले लिया, मीन्स कितने रुपये डॉलर या करोड़ रुपए, ठीक है, 5000 करोड़ रुपीज़, 10,000 करोड़ रुपीज़, 15,000 करोड़ रुपीज़। यहाँ पर हमने अपना रुपी ले लिया है करोड़ में, और यहाँ पर हमने अपने टाइम पीरियड को बता दिया है ईयर्स में, और हमने फिर बना दिया एक इम्पोर्ट का ग्राफ, एक बना दिया एक्सपोर्ट का ग्राफ। तो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, तो इम्पोर्ट है स्क्वायर डॉट वाला, तो इम्पोर्ट इंडिया में ज़्यादा हुआ है, डेट इज़ इम्पोर्ट तेज़ी से बढ़ा है आफ्टर द ईयर ऑफ 2004 एंड 5। यहाँ अलग से बता सकते हैं ना, 2004 से इम्पोर्ट जो है बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ, बट देयर इज़ अ
लेस इंक्रीमेंट इन द एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया। सिंपल, ये डाटा प्रेजेंटेशन हमारा कंप्लीट हुआ। और एक रिक्वेस्ट है लास्ट में, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। एंड आपको टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करना है। आपको PDF कंप्लीट डाटा जो भी डाउट है आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हो, कनेक्ट हो कर सकते हो। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।